today's class. Lastly, we start the chapter that is C++. C++ में हमने polymorphism topic चल रहा था. What is polymorphism? Polymorphism means one name with multiple form, that is called as polymorphism. There are two types of polymorphism, compile time and run time. ठीक है, हमने इसमें compile time complete कर लिया था. In compile time, we have function overloading and operator overloading. After that, in this class today we will cover runtime polymorphism. In runtime polymorphism, we have virtual function. Okay. Now, first we will see what you mean by runtime polymorphism. Runtime polymorphism क्या होता है? The selection of member function in runtime polymorphism, the selection of member function to be invoked while the program is running, this is known as runtime polymorphism. Runtime polymorphism means क्या? जो भी member function है, जो भी member function select होगा, it is invoked, means it is to be selected at runtime. Runtime पे ये select होगा. That's why it is called as runtime polymorphism. ठीक है? Selection of member function is done at a runtime. That's why it is known as runtime polymorphism. To achieve runtime polymorphism, C++ support the mechanism of virtual function. ठीक है? In C++, for runtime polymorphism, we are using the concept of virtual function. Since the function is linked with a particular class much after its compilation, this process is termed as late binding. ठीक है? Means runtime polymorphism is also called as late binding. Why it is called late binding? Because the selection of member function is done at runtime. ठीक है? जो भी member function है वो select होता है runtime में. That's why it is called as late binding. After that, there are rules of virtual function. Sometime in your board exam, there may be asked only a rule for virtual function. Okay. So this may come in your exam for 4 marks. At that time, you have to write at least 8 rules for virtual function. Okay. The first rule is virtual function must be a member of some class. जो आपका virtual function है, वो किसी ना किसी class का member function होना चाहिए. This is first rule. After that, they cannot be static member. Virtual function static member नहीं हो सकता. After that, they can be accessed using a object pointer. अगर आपको virtual function, if you want to access a virtual function, you can access with the help of object pointer. आपको object pointer उसका create करना पड़ेगा. After that, a virtual function can be a friend function of other class. Virtual function, friend function. It may be a friend function of other class. After that, the virtual function in access class must be defined even though it is not to be used. आपको virtual function define करना ही है. Even if you are not using virtual function, still you have to define a virtual function. The prototype of a base class version of a virtual function and the derived class version must be identical. Prototype is nothing but a pattern. ठीक है? इसका मीनिंग क्या है ये वाले रूल का? द पैटर्न ऑफ बेस क्लास वर्जन, जो भी आप वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में बनाओगे और डिराइव क्लास में बनाओगे, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इसमें मैंने बेस क्लास बनाई है. ठीक है, हमने इनहेरिटेंस में देखा था बेस क्लास विच इज आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट क्लास. आफ्टर दैट डिराइव क्लास विच इज कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास. ठीक है, यहाँ पे एक बेस क्लास है, देयर इज अ डिराइव क्लास 1, देयर इज अ डिराइव क्लास 2. ठीक है, दो डिराइव क्लास है. तो यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है? whatever function you are defining in base class, वही फंक्शन आपका जो बेस क्लास में आप फंक्शन बनाओगे, दैट सेम फंक्शन यू हैव टू डिफाइन, दैट सेम मेंबर फंक्शन यू हैव टू डिफाइन इन डिराइव क्लास. डिराइव क्लास में भी वही फंक्शन होना चाहिए. The prototype of base class version of virtual function and all the derived class version must be same. ठीक है, तो यहाँ पे सेम नाम का हमने मेंबर फंक्शन बनाया, दैट इज print. In derived class 1 we have print function and in derived class 2 we have print function. Next rule is we cannot have virtual constructor but we have virtual destructor. We can create a virtual constructor but we can't create a virtual destructor. A base pointer can point to any derived object but reverse is not true. Base class का pointer कोई भी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, बट डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता. When a base pointer point to the derived class, the incrementation and decrementation relative only to the base class. ठीक है, जब आप बेस क्लास का पॉइंटर बनाओगे
तो जो भी इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन होगा दैट ओनली रिलेटिव टू द बेस क्लास से ही रिलेटेड होगा. After that, this program is without virtual function. Here I am writing a program without virtual function. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एक बेस क्लास बनाई है, दैट इज पैरेंट क्लास. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है. एक बेस क्लास, उससे हमने एक डिराइव क्लास 1 बनाई है, देन सेकेंड इज डिराइव क्लास 2. दिस इज इनहेरिटेंस. ठीक है, फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग हियर बेस क्लास बेस, उसमें एक मेंबर फंक्शन बनाया है void print नाम से. Then in void print, I have write one statement. I'm printing one statement cout in base class. After that, termination of class base. After that, I'm creating second class, that is derived class 1. ठीक है, ये इसकी parent class है. Base class, derived class is a child class of base class. ठीक है, base class की child class है derived class 1. ठीक है, तो class derived 1 public base. This is the syntax. ये हमने inheritance में देखा था. आफ्टर दैट हमने यहाँ पे भी प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें सी आउट स्टेटमेंट में वी आर राइटिंग इन डिराइव 1 क्लास. आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग सेकेंड डिराइव क्लास D2. ये D2 क्लास हमने बनाई है, जिसकी पैरेंट क्लास कौन है, D1. तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक डिराइव 1. आफ्टर दैट अगेन वी आर क्रिएटिंग अ प्रिंट फंक्शन. आफ्टर दैट वी आर राइटिंग सी आउट स्टेटमेंट. हियर आई एम प्रिंटिंग इन डिराइव 2. ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इन डिराइव 2 क्लास. ओके, आफ्टर दैट void main, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है. आफ्टर दैट डिराइव क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट 1. डिराइव 2 क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट 2. आफ्टर दैट बेस क्लास का वी आर क्रिएटिंग अ पॉइंटर. हमने अभी रूल्स पढ़ा कि आपको बेस क्लास का पॉइंटर बनाना है. दे कैन बी एक्सेस यूजिंग अ ऑब्जेक्ट पॉइंटर. बेस क्लास का हमेशा आपको पॉइंटर क्रिएट करना है. ठीक है, सो डिराइव क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, एंड बेस क्लास का वी आर क्रिएटिंग अ पॉइंटर. After that, next statement is ptr is equal to address of object 1. अब क्या होगा, जो भी address of object 1 है that will be copied into ptr. ठीक है, address of object 1 this is called as address. Address of object 1 जो है it will be copied into ptr. ptr में copy हो जाएगा. After that, next statement हमने लिखा है ptr किसको कॉल कर रहा है, ptr प्रिंट फंक्शन को. बट वी हैव 3 प्रिंट फंक्शन. हमारे पास 3 प्रिंट फंक्शन है. एक बेस क्लास में भी प्रिंट फंक्शन है, डिराइव 1 में भी प्रिंट फंक्शन है, एंड डिराइव 2 में भी प्रिंट फंक्शन है. अब ये ptr कौन से प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो कंपाइलर चेक करेगा कि ये ptr कहाँ से आया. तो दिस ptr इज फ्रॉम बेस क्लास. बेस क्लास से हमको ये ptr मिल रहा है. ठीक है, दिस ptr इज फ्रॉम बेस क्लास. ठीक है, तो ये बेस क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देगा. ये वाला फंक्शन इट विल बी कॉल्ड द प्रिंट फंक्शन ऑफ बेस क्लास. बेस क्लास का प्रिंट फंक्शन क्या है, दिस इज द प्रिंट फंक्शन ऑफ बेस क्लास. सी आउट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, इन बेस क्लास. आफ्टर दैट अगेन वी आर कॉपीड ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 2. तो एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विल बी कॉपीड इनटू ptr. आफ्टर दैट ptr कॉल कर रहा है प्रिंट फंक्शन को. अगेन कंपाइलर चेक करेगा कि ये ptr कहाँ से आया, तो दिस ptr इज बिलोंग टू द बेस क्लास. अगेन द प्रिंट फंक्शन बेस क्लास, जो बेस क्लास का प्रिंट फंक्शन है दैट अगेन कॉल. ठीक है, तो इन बेस क्लास 1 फिर से यही आउटपुट प्रिंट होगा. तो हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग अ वर्चुअल फंक्शन, बार बार जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है वही कॉल हो रहा है. ठीक है, मीन्स आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, इन बेस क्लास. इन अर्ली बाइंडिंग it is decided at compile time, so it will execute the function of base class. ठीक है, रन टाइम में क्या हो रहा है, जो भी फंक्शन है कंपाइल टाइम में डिसाइड हो रहा है, जिससे बेस क्लास का ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है. इन अर्ली बाइंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉइंटर. जो भी पॉइंटर का टाइप है ये चेक कर रहा है कि पॉइंटर का टाइप क्या है, तो ये पॉइंटर का टाइप जो है वो बेस क्लास है. यहाँ से हमको ये पॉइंटर मिला है, तो बार बार बेस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन. बोथ द प्रोग्राम आर सेम, बट हियर आई एम राइटिंग ओनली वन थिंग, दैट इज बेस क्लास का जो प्रिंट फंक्शन था. ठीक है, जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है दैट इज प्रिंट, उसके आगे मैंने वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया है. बाकी A to Z आपका पूरा प्रोग्राम सेम है. ओके,
After that, here I am first creating a base class. Here I am writing print function with virtual. ठीक है, इसको मैंने virtual function बना दिया है. After that, derived class 1, then public, यहाँ पे आएगा derived class derived 1. ठीक है, public derived 1 क्योंकि इसके parent class है derived 1. After that, same print function, यहाँ पे derived 2 आना चाहिए. In derived 2. After that, same program का execution होगा कि फर्स्ट void main derived class का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट 1, derived 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट 2, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है. आफ्टर दैट at ptr is equal to address of object 1. this is equal to, ठीक है, ptr is equal to address of object 1. अब क्या होगा कि जो भी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मींस ऑब्जेक्ट 1 के जो भी कंटेंट है दैट कंटेंट विल गेट कॉपीड इनटू पीटीआर. अभी क्या कॉपी होगा, कंटेंट कॉपी होगा. ठीक है, इसके पहले क्या हो रहा था, एड्रेस कॉपी हो रहा था. नाउ एट दिस टाइम ड्यू टू वर्चुअल कीवर्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, द कंटेंट ऑफ एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल गेट कॉपीड इनटू पीटीआर. ठीक है, अब ये चेक करेगा पीटीआर किसको कॉल कर रहा है, प्रिंट फंक्शन को. अब ये चेक करेगा कि ये पीटीआर कहाँ है, तो दिस पीटीआर बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट 1. तो इट विल चेक ऑब्जेक्ट 1 कहाँ से आया. तो ऑब्जेक्ट 1 इज कम फ्रॉम डिराइव्ड ऑब्जेक्ट 1 मींस डिराइव्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट है ये. तो जो भी डिराइव 1 क्लास में प्रिंट फंक्शन होगा दैट प्रिंट फंक्शन विल गेट कॉल्ड. ठीक है, आफ्टर दैट इन सिमिलर वे ptr is equal to address of object 2. तो जो भी object 2 के कंटेंट है that will get copied into ptr. object 2 के कंटेंट कॉपी होंगे ptr में. then we are calling a function ptr point कॉल कर रहा है फंक्शन को that is print. अब कंपाइलर चेक करेगा कि ये ptr कहाँ से आया, इस ptr में क्या है. तो in this ptr it contained content of object 2. तो चेक करेगा कंपाइलर object 2 कहाँ से आया, तो object 2 is belong to the डिराइव क्लास 2. ठीक है, तो जो डिराइव क्लास 2 है उसका प्रिंट फंक्शन कॉल होगा दैट इज सी आउट इन डिराइव क्लास 2. ठीक है, एट दिस टाइम वी गेट द आउटपुट दैट इज डिराइव क्लास 1 एंड डिराइव क्लास 2. ठीक है, ये हमको आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है इन लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग इट इज compile time and late binding it is run time. ठीक है, तो in late binding the execution of function according to the content of pointer. ठीक है, जो भी पॉइंटर के कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन अर्ली बाइंडिंग में क्या था, इन अर्ली बाइंडिंग द फंक्शन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे. तो in this class we will हमने देखा कि what is virtual function, what is runtime polymorphism, what is virtual function, rules of virtual function, how you can define a virtual function, what problem we are facing when we are writing a program without virtual function. So this is the program with virtual function. Okay, in next class we will see friend function. Okay, thank you so much.